1 year we opened around 20 plus outlets, and this month we are aiming to open around 5 more outlets across India, right? So we have, like, in burger we have a pizza, we have sandwich, we have wraps, we have shakes. We are planning to introduce other categories as well, like waffles and some meals program as well. So yes, this is about the brand. So let's go to our PPT. So if you this is our about the brand. So basically, as I said, Kiwi, Burger Monk, we started by the young and energetic mind with the rich experience in a retail and marketing segment. So the owner of this brand is, if I talk about the background of this person from engineering and then MBA, so they started this concept. So by innovating, we are regularly innovating our menu by improving our food quality. We always retain our customer and have delight them by serving something new every time when they order us. So we are, our motive is to provide some quality food to them. So as I said, when we started our brand Burger Monk, so we was aiming to, like, during this COVID period. So we thought, let's add some more brands to expand our network, to expand our brand as well. So by providing other varieties of food to the customer, so we added pizza, we added Pizza Theory as our brand. So this is for the cloud kitchen. Our base brand will be a Burger Monk. So as I said, अगर मैं बात करूं कि हमारा जो एक फिजिकल आउटलेट रहेगा वो हमारा बर्गर मॉन्क के नाम से रहेगा. सो इन बर्गर मॉन्क वी हैव अ मेनू ऑफ बर्गर, पिज्जा, सैंडविच एंड स्टेक्स. एंड so when I talk about the brand Pizza Theory, so this is completely a cloud based kitchen. So we are specialty in pizza and pasta and other things as well. So now we introduce our third brand as well, brand name called Eddie's Burger and Pizza. So this is a combination of pizza and burger, right? So reason, as I said, कि अगर मेरा manpower, if I have same using same manpower, same kitchen, so our operating expense will be low, and then manpower भी मेरा costing same रहेगा. So but मेरा profit increase रहेगा क्योंकि मैं वहाँ पे same kitchen से मैं रन कर रहा हूँ बर्गर मॉन्क, पिज्जा थ्योरी एंड एडीज बर्गर एंड पिज्जा. तो ये एक आपके लिए एडवांटेज रहेगा. तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं आएगा, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर बात करूँ रेंटल का या मैन पावर की सैलरी का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, बट इसमें आपका मार्जिन विल बी इंक्रीज, राइट. सो नाउ कमिंग टू द second slide. So these are our some glimpse of our food images. So this is burger, we have pizza, we have shakes, we have pasta as well, we have sandwich as well. So these are our some food. So these are all some offer we are running time to time. Like we are running, like, if sometime we, suppose if I'm opening a new outlet in other part of cities, so मुझे वहाँ पे at least हम लोग वहाँ पे कुछ ऑफर रन करते हैं, like get fries at 5 rupees only, buy 2 burger at 89 rupees only, so buy 1 get 1. इस तरीके से हम लोग पूरा ऑफर रन करते हैं जिसमें मेरे पास कस्टमर बेस एक अट्रैक्ट होता है. तो जिसमें एक लोगों को, मेरा मोटिव है कि मैं खाली उनको एक प्रोडक्ट का अपना टेस्ट वहां तक पहुंचाऊं, राइट. दिस इज आवर मेन मोटिव. हम लोग अभी मील्स भी इंट्रोड्यूस किया हमने. सो वी आर प्रोवाइडिंग मील्स एट 119 रुपीज. सो इस तरीके से हम लोग इसमें ऑफर रन करते हैं. तो ये हमारा बेसिकली मेनू है. अगर बात करूं कि बर्गर में, पिज्जा में एंड ये हमारा मेनू रहेगा ये. So we have different varieties of burger, we have wraps, we have pizza, right. So अगर पिज्जा में बात करूं तो हमने onion pizza, we have capsicum pizza, we have cheese and tomato pizza. So these are, इसमें every time we are adding new flavor in our menu. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये हमारा बेसिकली अगर बात करूँ कि पैकेजिंग की, क्योंकि एक अगर आप फूड सेक्टर में हैं, डेफिनेटली आपके लिए एक पैकेजिंग एक मेन कॉन्सेप्ट रहता है. आपको एक इस टाइम पे तो लोग बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ रहा है, तो इस वजह से
हमारी जो पैकेजिंग है वो टॉप प्रीमियम क्वालिटी हम लोग पैकेज करते हैं इसमें। इसमें आपका जैसे बर्गर का पैक हो गया, आपका पिज़्ज़ा का हो गया, आपका बटर्स वी आर यूजिंग फॉर द शेक्स एज़ वेल, फॉर द फ्राइज़ के लिए हम लोग अलग से एक पैकेट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक आउटलेट का सेटअप हो गया हमारा बर्गर मॉम के नाम से, ये हमारा सेकंड आउटलेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट हाइजीन मेंटेन करते हैं अगर बात उनकी पैकेजिंग उसमें। सो द सेम ये हमारा नया आउटलेट है। वी लॉन्च दिस आउटलेट इन सहारनपुर। वी लॉन्च दिस आउटलेट अराउंड 10 डेज बैक। सो दिस इज कंप्लीट डाइन इन कॉन्सेप्ट। तो अभी हमने अपना कंप्लीट डिजाइन पूरा भी चेंज किया है। सो सी नाउ कमिंग टू लाइक मेन पॉइंट की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, अगर आप किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग एनी एनी काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी एनी, तो मेन रहता है कि आपको सपोर्ट क्या मिलता है वहाँ से। सो वी आर गिविंग कंप्लीट हैंड ओवर सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ टू आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ brand support, in terms of training support, in terms of raw material support, in terms of store setup support. See, हम लोग इसमें अगर हम बात उनकी स्टेप बाय स्टेप की, तो इसमें सबसे पहले वी हैव टू फाइनलाइज द लोकेशन एज वेल, बिकॉज अगर बात उनकी ब्रांड में, तो एक आपको कोई बिजनेस में आपको एक लोकेशन मेन फैक्टर होती है। सो लोकेशन हम लोग अपने हैंड से पूरा सर्च करते हैं आपकी लोकेशन, आपके एरिया में कि कौन सी लोकेशन बेस्ट है आपके अकॉर्डिंग, वहाँ पे आपका बजट के अकॉर्डिंग, आपका नियर बाई लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग आपको पूरा कंप्लीट लोकेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। देन कम्स टू अब आपका वहाँ पे सेटअप का पार्ट हो गया। अगर बात होती है वहाँ पे लाइक आपको कंप्लीट सेटअप सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। लाइक वहाँ पे डिजाइनिंग करना, 2D और 3D डिजाइन हम आपको पूरा शेयर करेंगे। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे पूरा इंटीरियर पार्ट करना, वहाँ पे बेसिक सिविल वर्क करना वहाँ पे, राइट। देन पैरेलली हम लोग काम करते थे अपना कंप्लीट मैन पावर के रिगार्डिंग, कि F&B सेक्टर में मैन पावर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत से मैन पावर की प्रॉब्लम आती है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो कंप्लीट सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। इन केस आपका कोई भी मैन पावर रिक्रूट होने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद छोड़ देता है, तो देन वी हैव अवर बैकअप। तो मेरा टीम का बंदा आपकी लोकेशन पे आके आपको सपोर्ट देगा जब तक आपके पास नया कोई बंदा आपको नहीं मिल जाता है। So we have trained manpower with us. So brand suppose as I said कि we have 3 brands under one roof. Like you know इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जब जब भी आप इसमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ कि सपोज आपको एक पर डे में अगर आप बर्गर की सेल आप 5,000 6,000 की कर रहे हैं, तो अगर आप उसी में एड ऑन ब्रांड आपके पास है और आप उसमें सेल्स अराउंड पिज्जा की आप 3 से 4,000 की कर रहे हैं, देन वी हैव सम अदर ब्रांड एडीज बर्गर। अगर आप उसकी कंबाइंड सेल्स करते हैं, तो स्टिल आपका एक अलग सेल्स है, अराउंड 4 टू 5,000 पीस उसकी पर डे सेल है। तो अगर मैं इसको ऐड ऑन करता हूँ, तो अगर आप मंथली सेल अगर 10-12,000 भी करते हैं, तो ये आपके लिए एडवांटेज ही है, राइट। तो ये है। अब डाइनिंग के तो डेफिनेटली मेरा जो बर्गर मॉन्क रहेगा, वो आपके लिए एक डाइनिंग का बिजनेस रहेगा वहाँ पे। ट्रेनिंग पार्ट में अगर मैं बात करूँ, तो कंप्लीट ट्रेनिंग उनको हम ही देंगे। हमारे खुद के किचन में उनको हम लोग अराउंड 15-20 डेज की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनको। तो जब वो बेसिक ट्रेन हो जाएँगे, बेसिकली मुझे इतना कोई पर्टिकुलर शेफ़ की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें सारा हमारा डिज़ाइन्ड मेनू है इसमें। तो पूरा रेसिपी आपको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा उसमें। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया कि आपको ठीक है, कितना क्वांटिटी में कितना क्या यूज़ करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनको रहेगी। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 15 से 20 दिन में उनको ट्रेनिंग लेने के बाद उनको हम लोग प्लेस करते हैं आपके आउटलेट पे। तो आपके आउटलेट भी हम लोग अराउंड 1 वीक या 10 डेज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रीज़न बीइंग कि ठीक है, मेरा आउटलेट ऑलरेडी सेटअप है, वहाँ पे मेरा किचन ऑलरेडी सेटअप है, तो नए किचन में कैसे वहाँ पे उनको वर्क करना है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमारी तरफ से रहेगी। मेन पॉइंट लाइक रॉ मटेरियल अगर बात करूँ, तो यहाँ पे कंप्लीट रॉ फूड आपको हमारी तरफ से पूरा सप्लाई होगा आपके आउटलेट पे। तो आपको बाहर से कुछ भी सामान परचेज़ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ कि रॉ फूड में इन टर्म्स ऑफ लाइक जो डेली यूजेस वेजीज़ हो गया, आपका वेजिटेबल्स हो गया, अदर थिंग्स आपको कंप्लीटली आपको आउटलेट पे ही डिलीवर होगा। आप इसको डेली बेसिस में कर सकते हैं, आप इसको वीकली बेसिस में कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर कैपेसिटी कि आपको वहाँ पे कितना ऑर्डर आपका पर डे का जाता है और आपका वीकली का कितना आप वहाँ पे स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली फ्रोज़न अगर मैं बात करूँ कि रॉ फूड की शेल्फ लाइफ़ की, तो ये अराउंड 3 टू 4 मंथ की इसकी शेल्फ लाइफ़ होती है। तो इसमें वेस्टेज का पार्ट बहुत कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई कि यहाँ पे हमारा एक प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। अगर मैं नॉर्मल अगर बात करूँ कि F&B सेक्टर में तो वेस्टेज अराउंड 2 और 3% वेस्टेज होता है, बट उसको हमने रिड्यूस किया। तो कैसे उस चीज़ को हम लोग अपना एक एज़ ए एडवांटेज इसको ऐड कर सकते हैं कि जो 2 से 3% का मेरा वेस्टेज है, मैं उसको कैसे
उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस वजह से हमने सारा उसमें R&D करके हमने यहाँ पे शेल्फ लाइफ जो प्रोडक्ट है हमने उसको 3 to 4 मंथ किया। एंड सेटअप गाइडेंस तो मेरे तरफ से कंप्लीट रहेगा ही वहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो हमारे ट्रेनिंग रहेगा, अगर मैं जो हमारे शेफ रहेंगे, आपको कंप्लीट ट्रेनिंग जो लोकली वेंडर रहेंगे उनको पूरा मैन पावर है, उनको कंप्लीट ट्रेनिंग रहेगा। तो लाइक इसमें अगर बात करूँ कि टीम वाइज बैकएंड से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, इसमें कंप्लीट सपोर्ट आपका रहेगा। अगर मैं बात करूँ कि लाइक आपका जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं स्विगी जोमेटो में आपका ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए, तो कंप्लीट उसका अकाउंट मेरी तरफ से मैनेज होगा। आपको अलग से कोई भी बंदा हायर करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो व्हेन इट कम टू ब्रांड वाइज, तो मेरे तीनों ब्रांड का लिस्टिंग अलग अलग होगा। लाइक बर्गर मंकी एक अलग लिस्टिंग होगा, एडीज का अलग होगा, पिज्जा थ्योरी का अलग होगा, राइट। तो ये एक एडवांटेज रहता है कस्टमर के लिए भी कि ठीक है, कस्टमर को हम एक हमेशा अलग-अलग ब्रांड से ऑर्डर करते हैं, लाइक दे विल थिंक लाइक दैट, राइट। सो वी हैव tie up with the international vendors, those who are providing the raw food to the international brand as well. So क्वालिटी मेरा अच्छा रहेगा, हर चीज हमें एक काइंड ऑफ हाइजीन मेंटेन करना रहेगा, वो हमारी तरफ से पूरा बैकएंड से ही पूरा मैनेज होगा। Now coming to the next slide. So basically we now coming to the business model side. So we have basically three model for this brands. We have express model, we have one minute. So we have express model, we have सिग्नेचर मॉडल, वी हैव फ्लैगशिप मॉडल वी हैव। सो अगर मैं बात करूँ कि सिग्नेचर मॉडल में, एक्सप्रेस मॉडल में, तो वी रिक्वायर्ड अराउंड 150 स्क्वायर फीट एरिया वी रिक्वायर्ड। सो इसमें आपका कंप्लीटली आपका डिलीवरी प्लस टेक अवे रहेगा। लाइक वी कैन से इट्स अ क्लाउड किचन, बट क्लाउड किचन वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द metro cities like Bangalore, Delhi, Chennai, Hyderabad, Bombay, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद एज वेल। सो क्योंकि यहाँ पे आपकी ऑनलाइन डिलीवरी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो टियर 2 सिटी के लिए वी आर फोकसिंग ओनली ऑन सिग्नेचर मॉडल एज वेल एज फ्लैगशिप मॉडल। सो यस, इसमें मेरा आपका कंप्लीट तीनों ब्रांड आपको तीनों मॉडल में रहेगा। सो अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाइज में बात करूँ तो इसमें आपका अराउंड 9 लाख रुपये से मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है, अगर मैं एक्सप्रेस मॉडल की बात करूँ तो। देन अगर मैं सिग्नेचर मॉडल की बात करूँ तो आपका अराउंड 12 लाख रुपीज़, एंड फ्लैगशिप मॉडल में मेरा 16 lakh rupees. So yes, of course we are charging royalty of 5%. Royalty मेरा सेम रहेगा वो तीनों फॉर्मेट के लिए, राइट। सो इन्वेस्टमेंट अगर फ्रेंचाइज फीस में बात करूँ तो वी आर चार्जिंग 3 लाख रुपीज फॉर द एज अ फ्रेंचाइज फी फॉर द एक्सप्रेस मॉडल, एंड सिग्नेचर वी आर चार्जिंग 4 लाख रुपीज, एंड सेम वी आर चार्जिंग फॉर द फ्लैगशिप मॉडल। तो ये आपका इंक्लूडेड है आपका 9 लाख में। अगर मैं बात करूँ कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट अगर बात करूँ कि एक्सप्रेस मॉडल के लिए, लाइक आपको क्लाउड किचन सेटअप के लिए आपको उसमें 9 लाख रुपीज आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा। उसमें आपका फ्रेंचाइज फीस इंक्लूडेड है, राइट। एंड आपका तीनों ब्रांड इसमें इंक्लूडेड है। सो एंड ये बेसिकली एक रहेगा इसमें। यस, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वहाँ पे थोड़ा एरिया ज़्यादा है वहाँ पे, तो वो थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट मेरा वेरी कर सकता है। तो लाइक एज़ आई सेड कि अगर मैं 600 स्क्वायर फीट में जाता हूँ तो मेरा वहाँ पे थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। 300 स्क्वायर फीट में सेम रहेगा। 150 स्क्वायर फीट में बेसिकली हमारा पूरा कंप्लीट एक किचन का सेटअप रहेगा। तो वहाँ पे एज़ ए इंटीरियर का कुछ भी पार्ट नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो कंप्लीटली आपका डिलीवरी एंड टेक अवे मॉडल रहेगा। अगर मैं सिग्नेचर में बात करूँ तो वहाँ पे मेरा अराउंड 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया का रिक्वायरमेंट है। उसमें थोड़ा पार्ट में अगर बात लेके चलूँ, अराउंड 10 से 12 लोगों का मुझे वहाँ पे सिटिंग कैपेसिटी लेके चलना पड़ेगा, जिसमें they can easily sit and they can have their meals and food, right? So इसमें आपका अराउंड 120-100 स्क्वायर फीट में आपका एक किचन सेटअप रहेगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन यूज फॉर द डाइनिंग। नाउ कम टू द फ्लैगशिप मॉडल। इसमें अराउंड 25 to 30 पीपल्स के लिए हम लोग एक डाइनिंग का अरेंजमेंट करते हैं इसमें। तो अराउंड 600 स्क्वायर फीट का एरिया रिक्वायरमेंट रहेगा इसमें। तो इसके लिए ये आपका कंप्लीट डाइनिंग में फोकस रहेगा इसमें हमारा। सो यस, इसमें आपका ऑनलाइन लिस्टिंग रहेगा, आपके ऑनलाइन ऑर्डर भी इंक्लूड रहेंगे सर। So now coming to the breakup of this investment. So when I say कि
इन्वेस्टमेंट इंफ्रा एंड स्टोर अगर मैं सेटअप की बात करूँ तो आपका अराउंड सर 3 लाख रुपीज़ आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा। 50,000 रुपीज़ आपको वहाँ पे रहेगा। देन अगर मैं बात करूँ किचन इक्विपमेंट्स की जो आपका मेन रहता है, ये मेरा अप्रॉक्सिमेट सारे मॉडल में आपका मेरा सेम रहेगा। अगर मैं एक्सप्रेस की बात करूँ, अगर मैं क्यूएसआर या फिर मैं फ्लैगशिप मॉडल की बात करूँ, तो उसमें आपका किचन इक्विपमेंट सेम रहेगा। सो अराउंड 3.3 लाख रुपीज़ इज़ आवर किचन सेटअप कॉस्ट। देन वी हैव फ्रेंचाइज़ फीस इज़ आवर 3 लाख रुपीज़। तो आपका ये अराउंड 9 टू 10 लाख रुपीज़ आपका ये इन्वेस्टमेंट आता है। तो नाउ लाइक अगर मैं बात करूँ कि ब्रेकअप कॉस्ट में आपका यहाँ पे सीलिंग हो जाएगा, फ्लोरिंग हो जाएगा, आपका पेंटिंग हो गया, आपका किचन काउंटर्स हो गया, आपका बेसिक फर्नीचर्स हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका सम साइनेज एंड ब्रांडिंग आ गया आपका वो। ये बेसिकली हमारा एक ब्रेकअप है। सो एंड यस, अगर मैं किचन इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो वी रिक्वायर्ड डीप फ्रायर, यू नो, पिज़्ज़ा मेकिंग लाइन आपको हो गया, आपका ग्राइंडर हो गया आपका, देन आपका बर्गर रेंज हो गया आपका, देन आपका यू नो रेफ्रिजरेटर हो गया, इस तरीके से बार चिलिंग हो गया आपका। इस तरीके से हमें बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा किचन इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा आपको कि अ, हम लोग पूरा कस्टमाइज़ करते हैं इक्विपमेंट, तो वहाँ से पूरा ताकि जिससे मैं जो शेफ़ हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए कि उनको इक्विपमेंट्स यूज़ करने में, कंप्लीटली हमारी तरफ से पूरा उनको गाइडेंस रहेगा। तो यस, द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग इसमें रॉयल्टी चार्ज नहीं कर रहे हैं फर्स्ट 3 मंथ के लिए, क्योंकि एज़ वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ टफ टाइम फॉर एनी बिज़नेस। तो दैट्स व्हाई कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ठीक है, एटलीस्ट एक जो मेरा न्यू बिज़नेस पार्टनर रहेंगे, तो एटलीस्ट उनको एक टाइम फ्रेम मिल जाए जिसमें उनका एक बिज़नेस सेटअप हो जाए। तो एटलीस्ट देयर कोई भी बिज़नेस है, एटलीस्ट 90 डेज़ का एक टाइम फ्रेम चाहिए होता है उसको एस्टैब्लिश होने के लिए। सो वी आर गिविंग 3 मंथ्स बफर पीरियड फॉर द इन्वेस्टर। तो वहाँ पे उस टाइम हम लोग रॉयल्टी चार्ज नहीं करेंगे फर्स्ट 3 मंथ के लिए। जैसे उनका बिज़नेस बढ़ता है, अराउंड उनकी सेल्स पर मंथ 2.5 लाख या 3 लाख रीच होती है, देन वी विल स्टार्ट चार्जिंग रॉयल्टी। तो ये ब्रेकअप मेरा हो गया सर बेसिकली कंप्लीट डाइनिंग के लिए अगर बात करूँ तो यहाँ पे एरिया मुझे 300 स्क्वायर फीट का रहेगा, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने बताया था। इसमें सेम रहेगा मेरा, थोड़ा यहाँ पे मेरा इंफ्रा की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मेरा एरिया बढ़ रहा है, तो डेफिनिटली वहाँ पे मेरा इंटीरियर की पार्ट हो गया, वहाँ पे सिविल वर्क हो गया, आपका थोड़ा-सा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाकी मेरा किचन इक्विपमेंट्स मेरा टेक का और सेम रहेगा। और येस, मेरी फ्रेंचाइज़ फी भी मेरी 4 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट अराउंड 13 टू 14 लाख रुपीज़ आपका आ जाएगा। सेम चीज़ मुझे इसमें रिक्वायरमेंट लगेगी, अगर मैं किचन की बात करूँ, किचन इक्विपमेंट में सेम चीज़ मुझे यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट रहेगा। ओनली आपको यहाँ पे जो इंक्रीज़ होगा, लाइक आपका वहाँ पे कुछ में डिपेंड करता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी कैसी है, वहाँ पे किस टाइप का वहाँ पे वर्क रिक्वायरमेंट है। तो वो डिपेंड करता है वहाँ पे प्रॉपर्टी साइज़ में भी मैटर करेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कितना आएगा। Uh, now coming to the ROI शीट, तो ये बेसिकली हमारा टेक अवे के लिए एंड डिलीवरी के लिए है, अगर मैं बात करूँ क्लाउड किचन के लिए। तो अगर मैं इसमें एज्यूम करता हूँ कि ठीक है, मेरा ऑनलाइन सेल्स इसमें कंप्लीट आपका ऑनलाइन सेल्स रहेगा और टेक अवे भी रहेगा। इसमें अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि ठीक है, मेरी बर्गर मॉन्ग की सेल्स पर डे में अगर लेकर चलूँ कि मेरी 3 से 4 हज़ार रुपए पर डे सेल्स है मेरी बर्गर मॉन्ग की। अगर मैं बात करूँ पिज़्ज़ा थ्योरी की, तो मेरा 5,000 सेल अगर मैं लेके चलूँ। अगर मैं एडीज़ की बात करूँ तो अराउंड मैं 5,000 में एडीज़ की बात करता हूँ। तो यस, नंबर ऑफ बिल्स अगर मैं तीनों ब्रांड का लेके चलूँ तो अराउंड अगर मैं 40-45 अगर मैं बिल लेके चलता हूँ पर डे का, तो यस, हम लोग एक अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं वहाँ पे, राइट? तो क्योंकि इसमें अगर टिकट साइज़ की बात करूँ तो मेरा सर अराउंड 300 से 350 रुपीज़ में इतना 2 लोगों के लिए मेरा टिकट साइज़ हो जाता है सर इसमें, राइट? तो टेक अवे में यस, अगर मैं टोटल मेरी सेल्स यहाँ पे सर अराउंड 13,000 मेरी पर डे की सेल होती है। तो ये मेरी मंथली पर मंथ की सेल मेरा अराउंड 3,90,000 रुपीज़ हो जाएगा सर ये। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ठीक है, मेरी सेल सर हर मंथ में 5% मेरा इंक्रीज़ होगा। तो फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड मंथ में मेरा सेल्स अगर मैं 4 लाख तक पहुँचता हूँ, थर्ड मंथ में मैं 4,20,000 रुपीज़ 30,000 रुपीज़ तक पहुँचता हूँ। इस तरीके से हम लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? तो अगर मैं इसमें काइंड ऑफ थिंग, अगर मैं एक्सपेंस की बात करता हूँ राइट, तो जो भी मेरा एक ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा, बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपका मेन रहेगा आपका रेंटल हो गया, आपका सैलरी हो गया, आपका फूड कॉस्ट हो गया, देन आपका सम मिसलेनियस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। ये 4-5 चीज़ें आपका मेन उसमें रहेगा। तो ठीक है, वी आर अज्यूमिंग मेरा जो फूड कॉस्ट है सर अराउंड 25% मेरी फूड कॉस्ट रहती है। तो अगर मैं 3,90,000 रुपीज़ का अगर मैं फूड कॉस्ट लेके चलता हूँ तो अराउंड मेरा 9 लाख 97,000 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे फूड कॉस्ट रहेगा।
रॉयल्टी इसको मैं 3 महीने बाद अगर ठीक है, मैं स्टार्टिंग में इसको कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि ये एक ईज़ी रहता है फिगर, अगर मैं रॉयल्टी फर्स्ट मंथ से ऐड करूँ, बट हम लोग रॉयल्टी फर्स्ट मंथ से चार्ज नहीं करेंगे। तो रॉयल्टी मेरा 5% है, सेट कि इसमें मेरा अराउंड 20,000 रुपीज़ का मेरा रॉयल्टी आ जाएगा। अगर मैं मैन पावर की बात करूँ सर, मुझे अराउंड 4 मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी डिलीवरी और टेक अवे में, जो कंप्लीट आपका पूरा किचन पूरा मैनेज करेंगे। तो सैलरी अराउंड 10 से 12,000 रुपए उनकी सैलरी रहेगी मैक्सिमम। सो वी टेक इट एज़ ए 10,000 रुपीज़ सैलरी, राइट? सो 40,000 रुपीज़ आपका यहाँ पे 4 बंदों के लिए सैलरी हो जाएगा। देन आपका यस रेंटल, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो डेफिनिटली 50,000 रुपीज़ मैं इसको रेंटल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि लोकेशन मेन होता है इस बिज़नेस में, राइट? अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, राइट? सम पैकेजिंग कॉस्ट मैं इसमें ऐड कर ले रहा हूँ 5,000 रुपीज़ का। एंड यस, डिलीवरी बिज़नेस में क्या होता है कि आपको पूरा कंप्लीट लिस्टिंग रहेगा स्विगी, ज़ोमैटो में। तो वी आर एज्यूमिंग कि ठीक है, मैं उनको 20% उनको एक उनका कमीशन भी जाएगा उनको, तो अराउंड 78,000 रुपीज़ उनका एक कमीशन हो जाएगा। सम मिसलेनियस एक्सपेंस अगर मैं बात लेके चलूँ मंथली में 3,000 रुपीज़ एंड सम, यस डेफिनिटली मुझे हर मंथ मुझे एक मार्केटिंग करना पड़ेगा, जिसमें मैं नया कस्टमर मैं ऐड कर सकता हूँ अपने बिज़नेस में, राइट? तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ठीक है, मैं पर मंथ एटलीस्ट मुझे 5 से 6,000 रुपए मुझे मार्केटिंग के लिए एक्सपेंस करना पड़ेगा, राइट? तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मैं लेके चलता हूँ तो आपका अराउंड 3 लाख रुपीज़ आपका आता है, 3,10,000 रुपीज़ आपका ये मैक्सिमम साइड में अगर लेके चलता हूँ तो, राइट? सो एंड अगेन मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अराउंड 4 लाख रुपीज़ का, तो स्टिल मैं वहाँ पे 1 लाख का नेट इनकम अपने पॉकेट में रख रहा हूँ, राइट? सेम आपका सेकंड मंथ भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग खर्चे भी हम लोग अराउंड 5% का बढ़ा लेते हैं वहाँ पे, जो मेरा क्योंकि मेरा सेल्स बढ़ेगी तो डेफिनिटली मेरा फूड कॉस्ट बढ़ेगा वहाँ पे। तो उसी अकॉर्डिंग हमने वो पूरा, अगर मैं सेकंड मंथ में 4 लाख का बिज़नेस कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा अराउंड 1 लाख का मेरा फूड कॉस्ट हो जाएगा। देन आपको मेरा रॉयल्टी अराउंड 20,000 की हो जाएगी। एम्प्लॉयी मेरा मैन पावर मेरा सेम रहेगा, मेरा रेंटल सेम रहेगा, राइट? मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरा सेम रहेगा, राइट? देन पैकेजिंग भी मेरा अप्रॉक्सिमेट सेम रहेगा, तो उसमें भी आप एक अच्छा अराउंड 1 लाख 10,000 भी 1 लाख 20,000 रुपीज़ आप बिज़नेस ले सकते हैं वहाँ पे भी, राइट? सो अगर मैं बात करूँ कि डाइनिंग में अगर मैं लेके चलूँ कि ठीक है, मेरा डाइनिंग में कितना सेल्स हो सकता है, तो ये इसमें भी एक इसमें मेरा जो सेल्स रहेगी वो मेरा ऑनलाइन एज़ वेल एज़ मेरा वॉक-इन्स की सेल रहेगी, राइट? तो अगर मैं इसमें बर्गर मॉन्क की सेल्स है अराउंड 5,000 रुपीज़ लेके चलता हूँ मैं, पिज़्ज़ा थ्योरी की भी मैं 5,000 रुपीज़ लेके चलता हूँ एंड एडीज़ का मैं अगर 5,000 रुपीज़ लेके चलता हूँ, तो एंड अगेन द एवरेज नंबर ऑफ बिल्स विल बी अराउंड 45 टू 50 मैं ये लेके चलता हूँ। तो इसमें मेरी पर डे की सेल मेरी यहाँ पे 15,000 रुपीज़ हो रही है, राइट? तो जो ईज़िली हम लोग अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे एक्जिस्टिंग आउटलेट हैं, तो यस हम लोग एक अच्छी सेल्स कर रहे हैं। अगर मैं डाइनिंग की बात करूँ, जैसे हमने रिसेंटली लॉन्च किया था हमने सहारनपुर में, तो वहाँ पे भी हमारी पर डे के अराउंड 11-12 हज़ार की सेल है, जबकि वहाँ पे कंप्लीट डाइनिंग है। वहाँ पे मैं ऑनलाइन कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा रेवेन्यू अगर बात करूँ कि तीनों ब्रांड से मेरा तो अराउंड 9 लाख रुपीज़ मेरा यहाँ पे रेवेन्यू आता है, राइट? सो ये देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक अवे का रेवेन्यू, अगर मैं बात करूँ सारा ऐड करने के बाद मेरा अराउंड 45 लाख का मेरा 45,000 सॉरी 4,50,000 का यहाँ पे मेरा रेवेन्यू आता है पर मंथ में, राइट? सो सेम मेरा इसमें फूड कॉस्ट भी सेम रहेगा, मेरा रॉयल्टी भी सेम रहेगा, मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयी भी सेम रहेंगे, मेरा रेंटल सेम रहेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अप्रॉक्सिमेट सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो एडवांटेज रहेगा, यहाँ पे मेरे पास वॉक-इन्स की सेल, जिससे मेरा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। यस, इसमें आपका थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहेगा अराउंड 14 लाख का, और आपका उसी हिसाब से आपका यहाँ पे बिज़नेस भी आपका ज़्यादा ही रहेगा, राइट? So this is all about our brand Burger Monk. So now we are open for the any further queries if you have regarding the investment plan, investment regarding the any support from the brand in terms of any location wise. So now we are open. You can raise your hand and put your queries, and definitely we will answer that, address the query. Thank you, Mr. Saurabh. Thanks a lot for this wonderful business presentation to our participants.
सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है बर्गर मॉन्क, जो कि इंडिया का एक वेल नोन एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड है। और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप इस ब्रांड की फ्रेंचाइज लेकर अपना खुद का फास्ट फूड एंड कैफे स्टार्ट कर सकते हैं। सो अभी मिस्टर सौरभ का हमने प्रेजेंटेशन देखा है। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है आपके पास में कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, ब्रांड की तरफ से सपोर्ट क्या रहेगा, हर तरह के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिस्टर सौरभ देंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइज हैंड पे क्लिक कर दीजिए और मिस्टर सौरभ से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर सौरभ से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, मिस्टर सौरभ, वी हैव 5 to 6 क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। यस सर, यस यस, टेल मी। हम पहले क्वेश्चन को लेंगे। मिस्टर कपिल हैं गाजियाबाद से। उनका क्वेश्चन है कि कैफे मॉडल के लिए कितना स्पेस चाहिए? कैफे मॉडल, राइट। एक बार जो आपका अराउंड, छोटा कैफे मॉडल है उसका इन्वेस्टमेंट और स्पेस वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू। देखिए अगर मैं कैफे मॉडल में बात करूँ तो मैं डेफिनेटली मेरा यहाँ पे एरिया वाइज अगर लेके चलूँ तो 300 स्क्वायर फीट मेरा एरिया इनफ है, राइट। अगर मैं बिगर फॉर्मेट जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा फ्लैगशिप में अराउंड 600 550 स्क्वायर फीट का रहेगा। अगर मैं कैफे मॉडल यस वहाँ पे 300 स्क्वायर फीट के में उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट आएगा अराउंड 12 से 13 लाख रुपए का आपको उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। इट इंक्लूड योर ऑल द लाइक बेसिक सिविल वर्क हो गया आपका वहाँ पे, आपका फ्रेंचाइज फीस हो गया आपका वहाँ पे, किचन इक्विपमेंट्स हो गया आपका वहाँ पे, देन फर्नीचर्स हो गया वहाँ पे, फ्लोरिंग हो गया, एवरीथिंग आपको। फिर उसके बाद कुछ भी आपको बाहर से नहीं परचेज करना पड़ेगा, इसमें आपको पूरा कंप्लीट सेटअप एक आउटलेट आपका इस्टेब्लिश हो जाएगा वहाँ पे, राइट। थैंक यू सौरभ। या दिनेश यादव है सर कानपुर से। उनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन योर क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट। बर्गर मॉम के अंदर अपना क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट अवेलेबल है सर? बिल्कुल है। देखिए बट हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में एक बार प्लान करिए, क्योंकि क्लाउड किचन के लिए अगर मैं बिजनेस वाइज बात करूँ तो यस मेट्रो सिटी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कानपुर के लिए हम लोग वहाँ पे थोड़ा डिलीवरी प्लस टेक अवे जा सकते हैं। अगर मैं वहाँ पे 300 स्क्वायर फीट में 250 स्क्वायर फीट में वहाँ पे मैं अगर किचन सेटअप करता हूँ अपना, और अराउंड 10 से 12 लोगों को वहाँ पे एक खड़े होने का फिर बैठने का अरेंजमेंट कर देता हूँ, जिससे वहाँ पे लोग कस्टमर आके वहाँ पे अपना मील्स खा सकते हो, फूड खा सकते हो, और जिसको लगता है कि ठीक है वो पैक करा के ले जाएंगे वो ले जा सकते हैं, और वहाँ पे मेरा ऑनलाइन सपोर्ट आपका लिस्टिंग पूरा रहेगा ही रहेगा। बट कानपुर के लिए हम लोग प्रेफर करेंगे एटलीस्ट आप डिलीवरी प्लस टेक अवे में जाएं, नॉट इन ओनली क्लाउड किचन, क्योंकि आपका वहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे उस हिसाब से वहाँ पे ऑर्डर अगर नहीं होंगे तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा सर वहाँ पे। सो वी आर सजेस्टिंग कि अगर आप बोथ डिलीवरी प्लस टेक अवे में जाएं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपका इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा आपका वहाँ पे, और वहाँ पे आपका इतना एरिया की रिक्वायरमेंट भी नहीं आएगा, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहेगी सर। थैंक यू सौरभ। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर एम दोशी। यस मिस्टर एम दोशी, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। Mr. M. Doshi, please now you can ask the question. Hello. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Tell me sir. अच्छा, मेरा ये पूछना था कि जो 3 ब्रांड जो आप ऑफर कर रहे हो सेम प्रोडक्ट में, तो उसका बेनिफिट क्या है? तीनों में सेम प्रोडक्ट है? नहीं, नो, मेरा सर बर्गर मॉन्क अगर आप जाएंगे तो उसमें प्रोडक्ट में सेम रहेंगे सर। उसमें आपका पिज्जा भी रहेगा, आपका उसमें शेक भी रहेगा, हर चीज रहेगा। बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप ऑनलाइन जाते हैं, राइट, तो मैंने जैसे प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था कि अगर मैं बात करूं कि पिज्जा थ्योरी की और आपका एडीज बर्गर, ये आपको ऑनलाइन सेल्स में आपको सपोर्ट करते हैं, राइट। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर ठीक उन्होंने जो बोला कि ठीक है चलो आज हमने बर्गर मॉन्क ऑर्डर किया था, और लास्ट में बर्गर मॉन्क से ऑर्डर किया, चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, राइट। तो वहाँ पे सपोज उन्होंने क्लिक किया, ठीक है, मेरे पिज्जा थ्योरी में क्लिक कर दिया, तो वो ऑर्डर मेरे पास ही आ जाएगा सर। तो वहाँ पे ये एडवांटेज होता है कि वहाँ पे मेरा कस्टमर को नहीं पता कि ठीक है पिज्जा थ्योरी और बर्गर मॉन्क सेम है, वो बोलता है ठीक है अलग अलग है, राइट। तो ये का टेस्ट और वो तो सब सेम रहेगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा, पिज्जा में भी सेम है और बर्गर में भी आपको सेम रहेगा सर।
बट हमने उसमें जो मेरी वैरायटीज है, पिज्जा थ्योरी में मेरे पास ज्यादा मेनू रहेगा, और अगर मैं बर्गर की बात करूँ तो उसमें मेरे पास कम मेनू रहेगा पिज्जा का। ओके। हाँ, तो ये हमारा मेनली फोकस ये था कि हमें इनको ऑनलाइन सपोर्ट के लिए ही हमने ये लॉन्च किया था ब्रांड, जिसमें आपकी सेल्स इंक्रीज हो और आपका खर्चे आपके पूरा सेम रहेंगे सर उसमें, राइट। अगर मैं पर ब्रांड से भी, हाँ। सेकंड क्वेश्चन मेरा, आप लॉजिस्टिक कैसे मेंटेन करेंगे? लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का आप क्या फैसिलिटी, मतलब क्या फैसिलिटीज है, कैसे सप्लाई होती है? और फॉर बॉम्बे ओके, जैसी सिटी के लिए आप आपका बेस कहाँ पे है? गुड़गांव सर। गुड़गांव। अभी समझो यस। बॉम्बे सिटी के लिए अगर चाहिए तो हाउ यू मैनेज विद फ्रॉम द गुड़गांव टू बॉम्बे? नहीं, बिल्कुल, देखिए मेरे पास जो वेंडर है सर हमारे, वो आपको आपके आउटलेट पे डिलीवर करेंगे, तो उसमें आपको लॉजिस्टिक का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सारा हमने R&D पहले कर रखा है सर, तो आपको कंप्लीट सपोर्ट आपको मिलेगा सर। आपको अगर आप बॉम्बे कहीं भी, अगर मैं बैंगलोर साइड की बात करूँ, आप वहाँ भी कर सकते हैं। बॉम्बे भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। आपको फूड, रॉ फूड जो रहेगा आपका, जो भी आपका, मैं अगर बात करूँ पैकेजिंग का मटेरियल हो गया, आपको आपके आउटलेट पे ही आएगा सर। आपको एवरीथिंग आपको आउटलेट पे आएगा सर। आप डिलीवरी टाइम के लिए 2 से 3 दिन का सर। अगर आप प्री में ऑर्डर करते हैं, ठीक है, आपने सपोज एक वीक का 10 दिन का अपने स्टॉक ऑर्डर कर दिए, तो आप जैसे आपका स्टॉक खत्म हो रहा था, आप फिर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो एक चेन बन जाती है सर, तो जिसमें आपको भी इजी रहता है, और सारी चीजें स्मूथली ऑपरेट होने लगती हैं सर वहाँ पे। बॉम्बे में ये हम लोग आपका बॉम्बे में है कोई नहीं, आउटलेट? अभी तो नहीं है सर, अभी नहीं है हमारा। तो वी, हाँ, अभी वी हैव आवर प्रेजेंस इन नॉर्थ ओनली अभी। तो बॉम्बे में किस लोकेशन देख रहे हैं वैसे सर? सबब्स। आई एम सॉरी, कम अगेन सर। बॉम्बे सबब्स टुवर्ड्स मलाड, अंधेरी, मलाल, ओके ओके ओके। बोरीवली। ये डेफिनेटली वहाँ पे सर अगर प्लान कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं क्लाउड किचन की बात करूँ तो अभी क्लाउड किचन भी हमारा वहाँ पे हो सकता है। कैफे मॉडल भी हमारा, फ्लैगशिप मॉडल भी वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हमको लोकल बाइंग कुछ अलाउड है, लाइक वेजिटेबल्स वगैरह, या सब आप ही सप्लाई कर देंगे? देखिए मेरे पास, मैं कर सकता हूँ, आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट मैं ही कर दूंगा। इन केस आपको लगता है ठीक है आप ले सकते हैं, जनरली आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा सर। आपको जो आपकी, अगर आप सोचते हैं कि प्राइसिंग थोड़ा इशू आएगा, वो भी कभी नहीं रहेगा सर। बेस्ट प्राइस मेरी तरफ से ही रहेगा। आप कंपेयर कर सकते हैं अदर वेंडर से भी, बट आई एम श्योर कि बेस्ट प्राइसिंग मेरी तरफ से आपको मिलेगा सर। तो क्या होता है कि ठीक है, एक अगर बाहर से आपको फिर बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक अलग से बंदा रखना पड़ेगा, वो बाहर से सामान लेकर आना है, फिर ये तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू हो जाता है। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम प्रेफर करते हैं आप हमसे ही लीजिए। हमारे जो वेंडर हैं आपको आपके आउटलेट पे ही सप्लाई करेंगे सर। ये अच्छा, जो वेंडर, आपकी जो सप्लाई होती है उसका पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा? ये देखिए फॉर, अगर इनिशियल स्टेज में आपका डेफिनेटली सर क्रेडिट में नहीं रहेगा, बट लेटर ऑन जैसे आपका बिजनेस 2 3 महीने हो गया आपका, ये क्रेडिट में जा सकता है सर आपका। ये टाइम फ्रेम आपको एटलीस्ट 1 वीक से 10 डेज आपको टाइम फ्रेम मिल जाता है सर वहाँ पे। अच्छा, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आप जो फ्रेंचाइज फीस जो बताया उसमें, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी और एक्सक्लूडिंग जीएसटी? क्योंकि इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, तो सीधा 18% 50। जीएसटी अलग से रहेगा सर, 18% जीएसटी अलग से रहेगा तो सर। 50,000 का उसमें, और 50,000 या 80,000 का उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और हाँ हाँ, वो तो आप सर देखिए, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आप डेफिनेटली उसको क्लेम कर सकते हैं। आप एक जीएसटी नंबर लेके आप उसको अपने सीए के थ्रू आप उसको क्लेम करा सकते हैं सर, राइट। तो एनीवे वो हमारे पास तो आता नहीं सर वो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर विदित। मिस्टर विदित प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए। मिस्टर विदित अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए सर। Okay, sir, we have a question of Mr. Vidit in chat box. उनका क्वेश्चन है कि if taste is same in all 3 brands, then why are you using different brands? देखिए मैंने आपको सर पहले ही कहा कि अगर आप मेरे फिजिकल आउटलेट में आएंगे सर, आपको हर चीज सेम रहेगा, बट जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको सारी लिस्टिंग अलग अलग दिखेगी। तो उसमें कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए हमने ये इंट्रोड्यूस किया था अदर ब्रांड नेम, पिज्जा थ्योरी एंड एडीज बर्गर। तो कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, ऐसे आपको एक दो कस्टमर मिल जाएंगे जो बोल ठीक है, कि बोलेंगे कि ठीक चलो आज मुझे बर्गर मंग हमने लास्ट टाइम टेस्ट किया था, मुझे कुछ नया ट्राई करना है, समथिंग न्यू
दे वांट टू ट्राई। सो उसके लिए हमने ये ब्रांड ऐड किया था, बर्गर पिज्जा थ्योरी एंड एडीज बर्गर। ये हमारा कंप्लीट ऑनलाइन के लिए ही है। इसमें आपकी लिस्टिंग भी डिफरेंट डिफरेंट नेम से होगी, तो आपका बर्गर मॉन्क और पिज्जा थ्योरी और एडीज बर्गर का तीनों ब्रांड की लिस्टिंग स्विगी जोमेटो में अलग अलग होगी। सिर्फ टेस्ट सेम रहेगा, क्योंकि टेस्ट हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये ब्रांड नेम अलग रहेगा वहाँ पे। तो ये मोटिव हमारा यही था कि मुझे ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज करने के लिए हम लोग उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट ब्रांड इंट्रोड्यूस किया। ये हमें उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है सर। तो आप उसमें उस चीज से फिक्र मत करिए, ठीक है उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ भी होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है सर। डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा आपकी सेल्स में। आपका वहाँ पे कुछ भी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा नहीं है, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है। आपके लिए मैन पावर सेम रहेगी, वही भी आपके लिए एडवांटेज है। आपका रेंटल सेम रहेगा, वो भी आपके लिए एडवांटेज है। किचन इक्विपमेंट भी आपके सेम ही रहेंगे सर, अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो आपको वहाँ पे जब कुछ भी आपको अलग से खर्चा नहीं हो रहा आपका, तो वहाँ पे आपको सेल्स एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, तो आपके लिए वो बेनिफिट ही है सर वो। तभी हम लोग कमिट करते कि एटलीस्ट हम लोग अगर मैं आरओआई की बात करूँ तो एटलीस्ट हम लोग सर 4 to 5 मंथ हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है मुझे एटलीस्ट इतने टाइम फ्रेम मुझे मेरा ब्रेक इवन मेरा कवर हो जाएगा, मेरा आरओआई आ जाएगा सर। रीजन बिंग की जो हमने एड ऑन ब्रांड एड ऑन किए हैं, हमने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा। अगर बात उनकी अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पिज्जा थ्योरी का भी और एडीज बर्गर का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। हमने इसको अराउंड 4 मंथ बैक हमने इसको ये दोनों ब्रांड ऐड किए थे। थैंक यू सौरभ। यस सर। ओके मिस्टर सौरभ, योर नेक्स्ट क्वेश्चन मृदुल हैं, ये हैं मृदुल है मुंबई से। उनका क्वेश्चन है कि एनी फोको मॉडल कॉन्सेप्ट अवेलेबल, आपके पास में कोई फ्रेंचाइजी ऑन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल अवेलेबल है? फोको अगर है मॉडल तो अभी सर हमने प्लान नहीं किया है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसमें एनीवे अगर बात की उसमें लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएगी सर। जो भी मैंने वो हम लोग अलग से डिस्कस कर लेंगे एक बार। अगर आपको प्लान है कि आप फोको मॉडल में जाना चाह रहे हैं, दैट वी कैन डिस्कस सर। उसमें आपका रॉयल्टी चेंज हो जाएगा सर उसमें, और आपका अराउंड फ्रेंचाइज फीस भी आपको चेंज हो जाएगा सर वहाँ पे। थैंक यू सौरभ। या वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर दीपक फ्रॉम इंदौर। उनका क्वेश्चन है कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योर ब्रांड सपोर्ट। मतलब वो अगर आपकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपकी तरफ से क्या ब्रांड सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, देखिए सर इसमें मेरा पूरा कंप्लीट सपोर्ट रहेगा। अगर मैं फ्रॉम डे वन से बात करूँ कि आपकी मेन आपका था आपकी लोकेशन फाइनल करना। सो वी हैव सेपरेट टीम जो आपकी लोकेशन पूरी सर्च करेगी आपके लिए, आपके बजट पे रहेगी, आपके नियर बाई लोकेशन पे ही रहेगी। अगर मैं इंदौर की बात करूँ, बहुत प्राइम लोकेशन अवेलेबल है इंदौर पे भी, तो वो कंप्लीट सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। आप भी अपनी साइड से लोकेशन सर्च कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव होती है हमारी तरफ से, डेफिनेटली हम लोग उसी में गो थ्रू कर लेंगे, आगे प्रोसीड कर लेंगे। सेकंड चीज आता है कि आपका सेटअप सपोर्ट। सो वी हैव अवर थीम बेस्ड डिजाइन, जिसमें हम आपको पूरा एक 2D एंड 3D डिजाइन का आपको पूरा हम लोग लेआउट डिजाइन दे देंगे, जिसमें हमारे वेंडर उसको पूरा कंप्लीट सेटअप करके देंगे, राइट। देन आता है आपका इसमें मैन पावर। सो मैन पावर का पूरा कंप्लीट सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये मैन पावर आपके लोकली भी हो सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे एम्प्लॉय मिलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उनको लोकली रिक्रूट करेंगे, और उनका ट्रेनिंग भी हम ही प्रोवाइड कराएंगे। देन उनका एनी सपोर्ट, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन लिस्टिंग में भी, अगर सपोज आप लिस्ट करते हैं अपनी स्विगी जोमेटो में, आप लिस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी अकाउंट रहेगा उसको पूरा मैनेज हम ही लोग करेंगे। आपको उसके लिए अलग से बंदा नहीं रखना पड़ेगा जो आपका अलग से अकाउंट मैनेज करे। तो आपका सपोज कोई ऑर्डर प्लेस होता है, कोई ऑर्डर कैंसिल होता है, उसका रिफंड के लिए पूरा हम ही बात करेंगे। आपको अब ये हेडेक लेना ही नहीं कि ठीक है मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ स्विगी जोमेटो में, तो अब मुझे रिफंड के लिए बात करना, वैसा कुछ भी नहीं है। वो सारा मैनेज हम ही करेंगे सर, राइट। आपका वहाँ पे आउटलेट को प्रमोट करना स्विगी जोमेटो में, आपका विजिबल कराना उसको, राइट। वो ये सारी चीजें हमारी तरफ से ही रहेंगी। देन आपका अगर मैं बात करूँ कि फूड वाइज अगर बात करूँ, तो इसमें हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग इसमें नया वैरायटीज ऑफ फूड ऐड करते रहते हैं। जैसे अभी हमारे पास बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, रैप और शेक हैं, तो अभी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं वॉफल्स को भी, तो जिसमें कस्टमर बेस मेरे पास बना रहे, राइट। अगर वो उनका आज बर्गर खाने का मन नहीं, तो मेरे पास और भी चीजें हैं जो वो ले सकते हैं, राइट। देन आपका वहाँ पे आता है सेल्स सपोर्ट। मेरी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट रहेगा कि आप कैसे ऑफर रन कर सकते हैं। आपका डिजाइन सपोर्ट मेरी तरफ से आपको रहेगा, जो हम आप ऑफर भी जो रन करेंगे,
आप लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया आपका, वहाँ पे आपका फेसबुक पेज में कैंपेन हो गया, एवरीथिंग हमारी तरफ से आपको गाइडेंस रहेगा पूरा। सेल्स में भी आपको पूरा कंप्लीट मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगा। देन मार्केटिंग में बात करूँ तो आपको कैसे वहाँ पे आपको लीफलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या ऑफर आपको चलाने हैं, राइट, क्या ऑफर आपको स्विगी जोमेटो में चलाने हैं, क्या ऑफर आपको वॉक-इन्स के लिए चलाने हैं, ये सारा मैनेजमेंट मेरी तरफ से ही रहेगा सर। अगर आपको अपने सीधे मैं एक अगर सीधे लैंग्वेज में बात करूँ कि अगर आप अपने आउटलेट में नहीं भी होते हैं, तो भी आपका आउटलेट ऑपरेट ऑपरेट करेगा, राइट? तो ये मेरा पूरा कंप्लीट सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा आपका सर वहाँ पे। मैन पावर सपोर्ट सर आपका ऐसा नहीं कि आपको सपोज़ मैंने फर्स्ट टाइम आपको मैंने हायर करके दे दिया, ये जब तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको पूरा कंप्लीट मैन पावर सपोर्ट आपको दूँगा। बेसिकली मेरा एग्रीमेंट सर 5 साल के लिए होता है, 5 इयर्स के लिए। सो 5 ईयर तक मैं आपको पूरा कंप्लीट सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। आपका स्टाफ कितनी भी बार आता है, जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। मेरा रिक्रूटमेंट चलता रहेगा सर आपके लिए वहाँ पे, और प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देता ही हमारी तरफ से होती रहेगी सर उनकी। एंड वन मोर थिंग मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आफ्टर 5 ईयर जो हमारा एग्रीमेंट रिन्यू होगा, उसमें कोई भी फ्रेंचाइज़ फीस नहीं है, राइट? सो ये आपकी वन टाइम फीस होती है। अगर मैं कोई मॉडल की बात करूँ एक्सप्रेस की या सिग्नेचर की या फ्लैगशिप की, आपकी ये एक लाइफ टाइम फीस हो जाती है, आपका रॉयल्टी कंटिन्यू चलता रहेगा बस। Thank you, Saurabh. Yeah. Okay, Mr. Saurabh, we have next question in chat box. Yes, sir. Question है कि is there charges for registration in Swiggy or Zomato? If yes, then how much? And do we need to pay 3 times for 3 brand? मतलब उनका क्वेश्चन ये है कि क्या जोमेटो और स्विगी में रजिस्टर्ड होने के लिए 3 ब्रांड के अलग-अलग 3 प्राइस देना होगा या सिंगल नहीं, अमाउंट नहीं। तीनों ब्रांड रजिस्टर्ड होंगे? देखिए, हाँ, अगर मैं बात करूँ कि इसमें आपका लिस्टिंग जो आपकी रहेगी सर डेफिनिटली अलग-अलग नाम से रहेगी। तो बट येस हम लोग उनको मैनेज कर लेंगे, वो हमारी तरह हेडेक है, आपको कैसे मैनेज करना है। वो लिस्टिंग आपकी कंप्लीट अलग-अलग रहेगी। अगर मैं बर्गर मंक की बात करूँ आपका अलग रहेगा, पिज़्ज़ा थ्योरी का अलग रहेगा आपका, इसका एडीज बर्गर का आपका अलग रहेगा। लिस्टिंग भी हम ही करेंगे सर, आपका अकाउंट भी हम ही पूरा क्रिएट करेंगे, आपको उसका मैनेज भी हम ही करेंगे। उसका एक्सेस डेफिनिटली आपके पास रहेगा, आपके पास कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कैसा क्या है, वो आपके पास रहेगा, राइट? Thank you, Saurabh. Yes, Mr. sir. Saurabh, we have last question in Yes, chat sir. box. मिस्टर मनोज हैं गया से, उनका क्वेश्चन है कि स्टाफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग, मतलब स्टाफ आप अपॉइंट करके देंगे या उन्हें करना है? आई एम सॉरी, आपकी वॉइस फिर से बोलिए सर, कम अगेन सर। मिस्टर मनोज का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि हाउ डू यू सपोर्ट इन स्टाफ अपॉइंटमेंट, मतलब स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट होगा कैफे मॉडल पे, वो आप करके देंगे स्टाफ अपॉइंटमेंट या उन्हें खुद करना होगा? हम ही करेंगे सर, ये हम ही करेंगे। स्टाफ को उनको मैंने आपको बताया कि उनका रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पूरा हम ही करेंगे। ये स्टाफ आपके लोकली भी हो सकते हैं। इनकेस अगर में कोई स्टाफ नहीं मिलता है लोकली अच्छा स्टाफ, तो हम लोग उनको बाहर से सोर्स करेंगे सर। बट मेनली हम लोग फोकस करते हैं हमें स्टाफ लोकली ही मिले, जिसमें आपकी थोड़ा कॉस्टिंग भी कम हो जाती है, और उनको क्योंकि हमने ट्रेनिंग पूरा हमें देना होता है, तो उतना इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर आपको। स्टाफ का पूरा मैनेजमेंट हमारी तरफ से रहेगा। थैंक यू मिस्टर सौरभ। जी सर। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर सौरभ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। सर विदित अनेजा का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट कमीशन चार्ज बाय जोमेटो एंड स्विगी? अराउंड 20%। 20%। ओके। हाँ, हाँ। एंड मिस्टर विदित, आप इस वेबिनार के बाद में भी बर्गर मॉन्क टीम से बात कर सकते हैं, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ बर्गर मॉन्क टीम। तो आप इस वेबिनार के बाद में इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बर्गर मॉन्क का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स 9810890160। I am repeating again, it's a 9810890160. So dear participants, आज हमने इंडियाज वेल नोन एंड ग्रोइंग फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड बर्गर मॉन्क की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर सौरभ से जाना, एंड वी होप कि आपका यह सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आप बर्गर मॉन्क की फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड हैं या इस ब्रांड के बारे में और इन डेप्थ
इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज आप बर्गर मॉन्क टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स 9810890160 and another number is 7878057 I am repeating again. It's 7878057 डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं. एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर विथ योर मेल आईडी एंड सिटी इन चैट बॉक्स so we can contact you after this webinar. And a warm thanks to Mr. Saurabh for addressing today's webinar session. Thanks a lot, Mr. Saurabh ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, team, for joining us. Thank you. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye.